ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੇ ਜੀ ਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੀ ਡਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ। Okay, let me have okay first question ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ Q is the brother of R। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ Q is the brother of R। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? P is the sister of Q। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ T is the brother of S and S is the daughter of R। ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ who are the nephew and niece of Q। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਨੀਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ Q ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਰਾਅ ਕਰੀਏ ਦਾ ਟਰੀ, ਲਾਈਨ ਬਾय ਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ Q is the brother of R। Q ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ? R ਦਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Q ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ? R ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? P is the sister of Q। मतलब P ਪਰਸਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ Q ਦੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ T is the brother of S। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ T is brother of S। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ S is the daughter of R। S ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਟਰ। ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੋਏਗੀ? S R ਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ T ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ S ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, Q is the brother of R ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਡਰੋ, ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਏ। P is the sister of Q, ਠੀਕ ਹੈ। T is the brother of S। ਓਕੇ, ਤੇ S ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਰ ਹੈ R ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ who are the nephew and niece of Q। ਨੈਫਿਊ ਨੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਫਿਊ ਨੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ ਮੈਰਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਈਲਡ ਜੇ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨੈਫਿਊ। ਚਾਈਲਡ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਨੀਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫਿਊ ਨੀਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਨੈਫਿਊ ਨੀਸ ਦੇਖਣਾ? Q ਦਾ। Q ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ? Q ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨੈਫਿਊ ਨੀਸ ਮਤਲਬ R ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ Q ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ। R ਦੇ ਦੋ ਚਾਈਲਡ ਨੇ S ਤੇ T, ਦੋਵੇਂ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਫਿਊ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? T ਹੋਏਗਾ ਨੈਫਿਊ, ਤੇ S ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਨੀਸ। Is that clear to everyone?
ठीक है। तो इस ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਐਂਡ ਐਸ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨੈਫਿਊ ਐਂਡ ਨੀਸ। ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਫਿਊ ਐਂਡ ਨੀਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨੈਫਿਊ ਐਂਡ ਨੀਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹੇ ਹੂ ਆਰ ਦੀ ਨੈਫਿਊ ਐਂਡ ਨੀਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਫਿਊ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨੀਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਫਿਊ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੀ, ਤੇ ਨੀਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਐਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਐਸ ਟੀ ਤੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਟੀ ਤੇ ਐਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੈਫਿਊ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਨੈਫਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਨੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਸ ਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन? ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ A ਇਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ B। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? B ਦਾ। B ਇਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ C। B ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏਗਾ C ਦਾ। D is the father of A। मतलब D person जो भी होएगा फादर होएगा A ਦਾ। फादर होने ਦਾ मतलब जनरेशन चेंज होएगी, D ਨੂੰ A ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪਏਗਾ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ based on these three statements which of the following statements cannot be definitely true। ਆ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਪੰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ओके, वो कह रहा है T इज दी ब्रदर ऑफ B। A इज दी ब्रदर ऑफ B। A पर्सन जो भी है वो की है? ब्रदर है की दा? B दा। अगली लाइन की कह रही है B इज दी ब्रदर ऑफ C। B पर्सन जो भी है वो की है? ब्रदर है की दा? C दा। मतलब B जो भी होएगा वो ब्रदर होएगा C दा। जेंडर मैं फिर तुहानू कहना कि नाल दी नाल ड्रॉ करने। कदे भी आई छेती ट्री ड्रॉ नहीं करना कि तुसी जेंडर ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। B इज दी ब्रदर ऑफ C। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ? D ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? D इज दी फादर ऑफ A। मतलब जनरेशन चेंज। D ਕੀ ਹੋਇਆ? फादर। किहदा फादर होया? A दा। ठीक है। उस तो बाद की कह रहा? बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट। ये पूरी दी पूरी 3 स्टेटमेंट देखने तो बाद मैं आपदा ट्री ड्रॉ कर लिया। ठीक। उस तो बाद कह रहा जी थले ऑप्शंस दी हुई है, थले 3 स्टेटमेंट दी हुई ऑप्शंस दे विच A B C D E, इन्हां चों किहड़ी डेफिनेटली ट्रू नहीं है?
कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, मतलब कि ट्रू नहीं है। मैं पहली ऑप्शन देखी, पहली ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ट्रू है, बी ब्रदर है ए ਦਾ, मतलब ए ਤਾਂ फॉल्स नहीं है। डेफिनेटली नॉट ट्रू ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ फॉल्स स्टेटमेंट, कि फॉल्स ਕਿਹੜੀ है। मैं दूसरी स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜਿਆ, दूसरी स्टेटमेंट ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ है, बी इज द सन ऑफ डी। बिल्कुल इस केस च भी बी सन बन रहा डी का, जेंडर क्लीयर अपन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। वो तो अगली स्टेटमेंट मैनू की कह रही है, वो तो अगली स्टेटमेंट मैनू की कहती है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक है, ए ब्रदर है सी दा। अगली स्टेटमेंट की कह रही है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। ये तो आप नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सी दा तो जेंडर ही नहीं क्लीयर अपन। इस केस च सी दा जेंडर अपन नहीं क्लीयर, तो आप किवें कह सकते हैं सी की है, ब्रदर है ए दा। तो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट किहड़ी मिल गई अपन नूं, डी ऑप्शन। अगली भी ट्राई कर लेने आप कि वो तो किते नहीं अपनी मैच कर रही फॉल्स वाली स्टेटमेंट दे विच। इहदे विच की दिता है, ए बी एंड सी आर डीज चाइल्ड। बिल्कुल चाइल्ड, चाइल्ड दसन वास्ते जेंडर की गल, जेंडर नूं देखना जरूरी नहीं हैगा। चाइल्ड का मतलब हुंदा बच्चे, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी की ने, डीज चिल्ड्रन। एफोस्ट्रोफी एस का मतलब मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, डीज मतलब मैं दस्सिया सी कपिल्स पेन। एफोस्ट्रोफी एस लिख के की दसना चाह रहा है, वो कहता कपिल द पेन। एफोस्ट्रोफी एस साउंड करता द, मतलब ए बी सी डी की ने, डी दे जवाक ने। बिल्कुल है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट अपनी केड़ी निकल के आऊगी इस केस दे विच, डी ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन च मूव करिए। ओके ओके, क्वेश्चंस ना ब्लड रिलेशन दे विच कई बार सिंगल सिंगल क्वेश्चन ना पाके वो आपां नूं की करदा है, स्टेटमेंट दे दिंदा है। एक स्टेटमेंट दे के वो ट्री दे बेस ते सिंगल क्वेश्चन ना पूछ के कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लैंदा है। उस केस च स्टूडेंट्स का तो बहुत बेनीफिट है, उन्हें ट्री की करना है, इक्को बार ड्रॉ करना है, तो उस ट्री दे ड्रॉ करने नाल आंसर किन्ने मार्क होंगे, उस केस च आंसर मार्क होंगे 3। जिमें 3 to 5 जेडे भी 3 to 5 क्वेश्चन होंगे उनकी डायरैक्शन इस क्वेश्चन दे विच दिती गई है, ठीक है। ये वास्ते की करना है, 3 तो लैके 5 तक, मतलब 3 4 5 क्वेश्चन जो भी होंगे उन्होंने दे आंसर आपां ने इस स्टेटमेंट नूं रीड करके इहदा ट्री ड्रॉ करके इस बेसिस ते देना है। ओके चलो पहला तो आप देखिए स्टेटमेंट च आपां नूं इन्फॉर्मेशन किहड़ी किहड़ी दित्ती गई है। वो कह रहा है ए इज द सन ऑफ बी। ए जो भी पर्सन होएगा वो सन होएगा बी दा। सी कॉमा बी सिस्टर, मतलब सी की है, सी है बी दी सिस्टर, ठीक है। सी बी सिस्टर मतलब सी बी दी सिस्टर। हैज अ सन डी की दा, सी दा। सी कौन है, बी दी सिस्टर है, ते उनका हैज मतलब उनका की है, एक सन है। केड़ा सन है, डी। ओके उस तो बाद कह रहा है एंड अ डॉटर ई, मतलब सी दा एक सन है डी ते एक डॉटर है ई, ठीक है। उस तो बाद की कह रहा है फुल स्टॉप एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल अंकल एक बार तुसी सारे आप क्रॉस चेक करो माइंड च मैं की दस्या सी। मैटरनल अंकल का मतलब की हुंदा, पैटर्नल वर्ड का मतलब हुंदा फादर दे रिलेशंस अगे जेड़े आ रहे ने। मैटरनल का मतलब मदर दे रिलेशन, ठीक। अंकल का मतलब ब्रदर होना, किदा ब्रदर होना, मैटरनल मम्मी दे ब्रदर। ओके ट्री ड्रॉ करके देखिए, लाइन बाय लाइन सब सारे इत्थे देखणगे ते जेड़ा ट्री मैं ड्रॉ कर रहा है थोड़ा जा क्रॉस चेक करना है। सिर्फ इन्नी की इन्फॉर्मेशन जो क्लीयर हो जाती है ना, एग्जाम दे विच ट्री ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा सौखा हो जाता है, ठीक है। ये कहना ए इज द सन ऑफ बी। ए परसन जो भी होएगा वो की होएगा, सन होएगा किदा, बी दा। ओके ठीक है। सी बी सिस्टर मतलब सी की है, बी दी सिस्टर है। ओके हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई, मतलब सी बी दी सिस्टर है ते उनके 2 जवाक ने। केड़े 2 जवाक ने, डी ते ई। ते डी की है सन ते ई की है डॉटर, जेंडर मैं आपका मार्क कर लिया। ते एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी।
डी दे मैटरनल अंकल का मतलब की है, डी दे मदर ते उन्हां दे अगे जिहड़े ब्रदर होणगे वो डी ते ई दे की लगणगे, मैटरनल अंकल लगणगे। ओके, मैं मार्क कर लेना आपदे ट्री दे विच कि एफ पर्सन की ने, मैटरनल अंकल ने की दे, डी दे। सारे जने क्रॉस चेक करो आपदा ट्री कि जिहड़ा ट्री मैं ड्रॉ करया सोडा ट्री भी उही बन रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपां नूं की कह रहा है, ए स्टेटमेंट दे बेसिस ते मैं आंसर करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 च की है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कि जिहड़ा भी ए पर्सन है वो रिलेटेड टू डी। इस क्वेश्चन नूं समझण दी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਜੇ ट्रांसलेट करिए ਦਾ मतलब की है, कहना हाउ इज ए रिलेटेड मतलब ए दा की रिश्ता है। हाउ इज ए रिलेटेड की कहना चाह रहा है, वो कहना ए दा की रिश्ता है। रिश्ता किसी का किसी लिए होएगा, वो पर्सन उस तो बाद उन्हें टू कह के यूज किया, आपां नूं दस्सिया कि रिलेशन किहदे वास्ते दसना है। वो कहना ए दा रिलेशन दसना है, किहनूं देख के दसना, डी दा, मतलब ए की लग्या डी दा। इस क्वेश्चन का यह मतलब है। ठीक है, मैं देखिया ए दा रिलेशन मैं दसना है। पहली गल मैनू एदा जेंडर क्लीयर है, आंसर आप कर सकते हैं। जेंडर दस रहा मैनू, जेड़ा भी आंसर निकल के आऊगा इस क्वेश्चन का, जेड़ा भी आंसर निकल के आऊगा वो किहदे च निकल के आऊगा, एज आ एक मेल दे विच आंसर आऊगा। ठीक, हुण ए दा रिलेशन किहदे कन्नियों दसना है, डी कन्नियों दसना है। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन दे आंसर नूं मार्क करन तो पहला दो चीज़ां मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहना। एक वर्ड हुंदा है कजन, ठीक, ते एक वर्ड हुंदा है सिबलिंग्स। ये दो अलग अलग वर्ड ने, इन्हां दे मीनिंग की हुंदे है। कजन का मतलब हुंदा है पेरेंट्स ने दो अलग अलग, मतलब बी ते सी आपस च की ने, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं क्योंकि इसका जेंडर क्लीयर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, या सेम फैमिली दे विच दो अलग अलग बंदे हैगे ने, बी दे अलग जवाक ने थले ए, सी दे अलग जवाक ने। जेडे डी ते ई दा रिलेशन होएगा आपस च होएगा ब्रदर सिस्टर दा। पर जेड़ा दूसरे पेरेंट्स दा उत्ते थले चाइल्ड बैठा है वो की लगेगा, वो इन्हां दा ब्रदर या सिस्टर नहीं लगेगा, वो की लगेगा, कजन लगेगा। सिबलिंग वर्ड कित्थे यूज किया जाता है, सिबलिंग का मतलब है आपस च भाई भैन होना। जे मैं कहा डी ते ई सिबलिंग्स ने तो मतलब डी ते ई सेम पेरेंट दे चाइल्ड ने। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। कजन का मतलब है सेम ब्लड लाइन दे विच दो अलग अलग पेरेंट ने ते उन्हां दे आपदे आपदे जवाक ने। वो जेडे अलग दो दो पेरेंट दे जवाक ने वो आपस च की लगणगे, ए डी दा की लगेगा, ए डी दा लगेगा कजन, ए ई दा की लगेगा, कजन। ठीक है, डिफरेंट पेरेंट दा चाइल्ड सेम पेरेंट, जे सी दे मैं पूछा सी दे चाइल्ड के डी ते ई, ते सी दे अगे ब्रदर या सिस्टर अलग कोई हैगे ने बी, ठीक है, ते उन्हां दा भी कोई चाइल्ड है, तो इन्हां दा आपस च रिलेशन कदे भी ब्रदर या सिस्टर च मार्क नहीं करना। इस केस दे विच कजन वर्ड यूज करया जाता है, ते इस ऑप्शन दे विच कजन मैंशन भी है, तो अपना की आंसर होएगा कजन। ते सिबलिंग्स का की मतलब है सेम थले चाइल्ड होना आपस च, डी ते ई की ने, इस केस च सिबलिंग्स कौन होंगे, डी ते ई की होंगे सिबलिंग्स, मतलब भाई भैन होना। सिबलिंग्स का मतलब होंदा भाई भैन होना, भाई भाई होना, भैन भैन होना, आपस च जेडे एक पेरेंट दे जवाक ने थले वो सिबलिंग्स होंगे। ठीक है, जिवें इस केस च मैं की कह सकदा उत्ते वाली लाइन च बी एफ ते सी ये की ने, ये सिबलिंग्स ने, डी ते ई की ने सिबलिंग्स ने, पर ए ते डी सिबलिंग्स नहीं है क्योंकि ये की ने कजन्स ने। ठीक है, ये चीज सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर है। ओके, इसका की क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन का की आंसर बनेगा, वो बनेगा कजन। इज दैट क्लियर। एक चीज जिहड़ी आमतर स्टूडेंट मिस्टेक करता है एग्जाम दे विच, वो की मिस्टेक करता है, वो करता है कि जिहड़ा आह सिंबल्स ने ना उन्होंने हसबैंड वाइफ कहना शुरू कर दिंदा है क्योंकि हजे उन्होंने बेसिक सिंबल की नॉलेज इन्नी नहीं होंदी, तो उन्होंने की कहन लग जाता है, कदे भी आपस च रिलेशन पुछ लैन तो इनू वाइफ हसबैंड बना दिंदा। तो इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल करैक्ट रीड करना है कि ये लाइन हमेशा की है आपस च ब्रदर सिस्टर होने दी वास्ते ये लाइन यूज की जाती है। ठीक है, जे मैं तुहानू पूछा हाउ इज
F रिलेटेड टू C। क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ F ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ D। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਇਜ਼ F ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ D, ਹਾਊ ਇਜ਼ F, what is the relation of F with respect to D। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, what is the relation of F with respect to, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ F ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ D। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, what is the relation of F with respect to D। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, what is the relation of F, ਮਤਲਬ F ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ with respect to, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, D ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आंसर मार्क करो जल्दी जल्दी। हाउ इज F रिलेटेड टू D? की आंसर है? F किथे बैठे है, D किदे चाइल्ड ने, D ते E C दे चाइल्ड है। F अगे की है, F अगे की है, F उन्हां दा ब्रदर है, मतलब की लगेगा, अंकल लगेगा। केड़ा अंकल लगेगा? मैटरनल अंकल। मैटरनल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि F दी सिस्टर दे चाइल्ड ने अगे, ठीक है, मतलब इन्हां दी मदर दे ब्रदर ने, मैटरनल अंकल। कई बार ऑप्शन दे विच मैटरनल वर्ड ना यूज करके सिर्फ अंकल वर्ड भी दिता जाता है, मतलब मैटरनल अंकल यूज ना करके सिर्फ अंकल दिता जाता है, तां तुसीं अंकल नूं भी मार्क करना है। ਉਹਦੇ 'ਚ नन ऑफ दीज मार्क नहीं कर देना अंकल देख के कि ਇਹਦਾ ਤਾਂ आंसर मैटरनल होना चाहिए ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ B ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ D, ਹਾਊ ਇਜ਼ B ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ B ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ D। सब जने मार्क करो, सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करैक्ट आना चाहिए। इस केस दे विच की आंसर है? बी का रिश्ता दसना है, किहदे कन्नी हो, F कन्नी हो। की आंसर होएगा? बी का रिश्ता दसना है। की मैं ये चीज दस सकदा? बी का जेंडर मैनू क्लीयर है? नहीं है ना क्लीयर, तो इस केस दे विच आंसर मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी की होएगा, कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनसफिशिएंट। ठीक, ओके, सारे एक क्वेश्चन क्लियर है। अगे मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेम इनफॉर्मेशन दे उत्ते दोबारा तो क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है, हाउ इज E रिलेटेड टू F। ठीक है, ट्री मेरा की कह रहा सी, ए की है, ए इज द सन ऑफ B, ए की है, सन है B दा, C सिस्टर है की दी, B दी, C सिस्टर होगी, सॉरी इन्हों आप रब कर लिए तो ठीक है। ए इज द सन ऑफ B, C की है, B सिस्टर, C B सिस्टर है, हैज अ सन D एंड सिस्टर अपनी डॉटर E, एंड F इज द मैटरनल अंकल ऑफ D। यही ट्री बनया सी पहला। ठीक है, वो कहता हाउ इज E रिलेटेड टू F। E का की रिश्ता है F नाल? मैनू पता है E का रिश्ता पूछा, जेड़ा भी आंसर आऊगा वो किहदे विच आऊगा, फीमेल च आऊगा। आंसर जो भी मार्क होएगा वो फीमेल दे विच मार्क होएगा। रिश्ता किहदे कन्नी दसना है? E का रिश्ता दसना है F कन्नी। E C दे चाइल्ड ने ते F C दा भरा है,
मतलब ये की होणगे ਉਹਦੇ सिबलिंग ਦੇ ਚਾਈਲਡ है ਅੱਗੇ है ना। सिबलिंग वर्ड का मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ सिबलिंग का मतलब हो गया ਇਹ ਦੋਵੇਂ आपस ਚ ਕੀ ਨੇ ब्रदर सिस्टर ने ठीक है। ई ਦਾ रिलेशन की होया एफ कन्नियों नीस क्लीयर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ सी ऑप्शन नीस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ए ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ डी ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ एफ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ डी ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ एफ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਫਿਊ ठीक। जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ एफ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਫਿਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ हाउ इज ए रिलेटेड टू डी हाउ इज ए रिलेटेड टू डी ठीक। ਤਾਂ ए ਦਾ डी ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਜ਼ਨ ठीक ओके। ई दा डी ए नाल की रिश्ता हाउ इज ई रिलेटेड टू ए तो आंसर की होएगा कजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ओके। फोर्थ क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया मूव करते हैं अगले क्वेश्चन च। अपन ने ट्री एक ड्रॉ करया सी ये स्टेटमेंट दे विच ते ओदे अगे किन्ने क्वेश्चन आए 5 क्वेश्चन आए। ट्री सिस्टम दा यही बेनिफिट होंदा है ट्री सिस्टम नाल जदों भी क्वेश्चन करते हैं अपना जल्दी जल्दी एक ट्री ड्रॉ करके जिन्ने मर्जी आंसर पूछना है बारी बारी अपन स्टेटमेंट च जाने की लोड़ नहीं पैंदी। इस केस च की क्वेश्चन पूछा अपन हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव हाउ मैनी नेफ्यू डज एफ हैव आ ट्री ड्रॉ होया सी अपना ए सन है की दा बी दा ते सी की सी बी दी सिस्टर सी एफ उनदा ब्रदर सी दो चाइल्ड सी थल्ले डी ते ई कहंदा हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव मतलब एफ दे नेफ्यू किन्ने ने मैं देखा थले 3 चाइल्ड ने ये अगे सिबलिंग दे 3 चाइल्ड ने ए भी है डी भी है ई भी है सिर्फ फीमेल एक ही चाइल्ड है नेफ्यू का मतलब की है मेल चाइल्ड थले मेल चाइल्ड किन्ने पे है 2 पे है ऑप्शन दे विच है बिल्कुल है 2 आंसर मार्क करो। क्लियर है सारिਆਂ ਨੂੰ हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव एफ दे 2 नेफ्यू ने ठीक ओके। जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਸੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ हाउ इज B related to F की आंसर होएगा ऑप्शन 3 तरह के आंसर बन सकते कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनसफिशिएंट या फिर की बन सकता है ईदर ब्रदर और सिस्टर ठीक। क्लियर है सारिਆਂ ਨੂੰ ओके। नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करिए हुण तक जिन्ने भी अपन ने क्वेश्चन किए सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आए ओके। नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सारे ने पहला तो आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन च लगभग सब कुछ यूज हो रहा है जिन्ना भी आपने ब्लड रिलेशन दे विच कीता है। ये क्वेश्चन नू आप ड्रॉ करने की कोशिश करो मैं स्टेटमेंट नू पढ़दा ते तुसी सारे ने इन्ने टाइम दे विच ट्री ड्रॉ करना आपदा ठीक है। स्टेटमेंट की कह रही है स्टेटमेंट कह रही है टी एस एंड आर आर 3 ब्रदर्स मतलब की है टी एस आर की ने आपस च भाई ने टी सन क्यू टी सन मतलब टी दा कोई सन है कौन है क्यू इज मैरिड टू के एंड दे हैव 1 चाइल्ड तरुण मतलब टी दा कोई सन है क्यू ते ओदा विआह किदे नाल होया है के नाल ओह मैरिड है एंड दे हैव 1 चाइल्ड उन्हां दा एक चाइल्ड है कौन तरुण ठीक। ब्लेस्ड देम दा भी मतलब है कि उन्हें बख्शा गया ठीक। एक चाइल्ड उन्हां दा तरुण एम द सन ऑफ एस एम की है सन है की दा एस दा इज मैरिड टू एच ठीक है। एम दा सन है एस ते वो मैरिड की दे नाल है एच नाल एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर सुखमन ते उन्हां दी एक डॉटर है सुखमन। आर हैज अ डॉटर एन मतलब आर दी एक डॉटर है एन हु इज मैरिड टू पी जिन्हां दी मैरिज किहदे नाल होई हुई है पी नाल। अगे दस रहे दिस कपल हैज 1 डॉटर वरुण मतलब इस कपल दी एक डॉटर है अगे कौन वरुण बॉर्न टू दैम। वो तो बाद उन्हें अपन अगला क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन का आंसर करने तो पहला ट्री जिन्हें बच्चों ने भी मेरे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ट्री ड्रॉ कराया मैं चाहना वो सारे
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਟਰੀ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਐਸ ਐਂਡ ਆਰ ਕੀ ਨੇ? 3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ 3 ਭਰਾ ਨੇ? ਟੀ ਐਸ ਤੇ ਆਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਨੇ, ठीक। अगली लाइन की कह रहा है? टी सन, मतलब टी दा सन कौन है? क्यू। टी दा सन कौन है? क्यू। इज मैरिड टू के, मतलब की है? मैरिड है, ठीक। किदे नाल मैरिड है? के ना, के ना मैरिड है, मतलब के दा जेंडर की हो जाएगा, ठीक। एंड दे हैव 1 चाइल्ड तरुण, मतलब इन्हां दा एक जवाक है कि कौन है वो? तरुण। क्लियर। अगली लाइन की कह रही है? M द सन ऑफ S, मतलब M का भी कोई सन है अगे, कौन है वो? M। M द सन ऑफ S इज मैरिड टू H। M की दे नाम मैरिड है? H ना मैरिड है। H का जेंडर मैनू क्लियर हो गया इथों, ठीक है। एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर सुखमन। ये कपल है ना जो भी, इन्हां दी थल्ले एक डॉटर है, कौन है वो? सुखमन, ठीक। जेंडर जदों भी डिफाइन कर दे तुरंत मार्क कर देना। आर हैज अ डॉटर एन, मतलब आर जो भी पर्सन है, एक डॉटर है थल्ले, कौन डॉटर है वो? एन, ठीक है। हु इज मैरिड टू पी, मतलब एन की दे नाम मैरिड है? पी ना, मतलब उसका जेंडर भी अपन क्लियर हो गया, कौन है? मेल है, ठीक है। दिस कपल हैज 1 डॉटर वरुण। ये जो भी कपल है इन्हां दी एक डॉटर है, कौन है? वरुण, ठीक, ठीक है। ट्री सारे क्रॉस चेक करो, जिन्हों का यह ट्री बनया सी, कि यही ट्री बनया सी? सेम ट्री है, जिन्हों का भी सेम ट्री बनया सी, वेरी गुड। ब्लड रिलेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत वधिया आ चुकी है जिन्होंने ये ट्री ड्रॉ कराया सी। जिन्हों का नहीं होया टेंशन लैन की लोड़ नहीं हैगी, नाल देखते जाना तो क्वेश्चन नूं सीखना है किवें ट्री ड्रॉ हो रहा। स्टेटमेंट देखो कितनी वड्डी सी, स्टेटमेंट नूं देखण च तां इह बहुत वड्डी लगदी है, पर जदों लाइन बाय लाइन आपां ने इहनूं ड्रॉ करे बिल्कुल भी औखी लगी किसी नूं नहीं हैगी। औखा कोई क्वेश्चन नहीं हुंदा ब्लड रिलेशन च। ब्लड रिलेशन च की क्वेश्चन कोई भी औखा नहीं हैगा, जदों भी बेसिक्स क्लीयर ने क्वेश्चन कोई भी औखा नहीं हैगा। हुण अगली चीज देखिए, क्वेश्चन की पूछ रहे आपां नूं, ठीक है। वो कहना हाउ इज सुखमन रिलेटेड टू एस। उन्हें क्या हाउ इज सुखमन रिलेटेड टू एस, सुखमन का रिश्ता पूछे, ठीक है। उन्हें पूछा हाउ इज सुखमन, मैनू पता लग गया सुखमन का जेड़ा भी रिलेशन निकल के आऊगा वो केड़े च निकल के आऊगा? फीमेल च। मतलब की है, मतलब मेरा जेड़ा भी आंसर बनेगा वो की बनेगा? एज आ एक फीमेल दे विच आंसर आएगा, वो जेंडर फीमेल च आंसर आएगा, ठीक है। सुखमन का रिलेशन किहदे कन्नियों दसना है? सुखमन का रिलेशन मैं दसना है एस कन्नियों। एस कित्थे है? उत्ते, ठीक है। सुखमन नूं मैं देखा वो बिल्कुल आ केड़ी जनरेशन है? ये फर्स्ट जनरेशन होगी। आ केड़ी जनरेशन है? सेकंड। आ केड़ी जनरेशन होगी? थर्ड, ठीक। पूरी दी पूरी 3 जनरेशन इहदे च दित्ती गई है। सुखमन केड़े जनरेशन च बैठी है? फर्स्ट जनरेशन च बैठी है वो, ठीक है। ते एस केड़ी जनरेशन च बैठी है? थर्ड च। सुखमन दा रिलेशन दसना है, हाउ इज सुखमन रिलेटेड टू एस, मतलब सुखमन दा की रिश्ता होया? सुखमन दा की रिश्ता होया एस नाल? मतलब की होएगी? सुखमन ग्रैंड चाइल्ड होएगी, ग्रैंड चाइल्ड होएगी पहली तो गल, वो डॉटर होएगी, सन होएगी, उस हिसाब नाल अपना आंसर मोल्ड हो जाऊगा। सुखमन की है? फीमेल है कि ये ग्रैंड चाइल्ड, ता की हुई सुखमन? ग्रैंड डॉटर। सुखमन की हुई? ग्रैंड डॉटर हुई। ऑप्शन दे विच देखो किते है सन, नीस, सन इन लॉ, डॉटर, नहीं। एक ऑप्शन है इहदे विच नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस च अपना यह आंसर आऊगा जिहड़ा आपां ने कढिया। की कढिया? ग्रैंड डॉटर। सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है? क्वेश्चन जिहड़ा आपां ने ड्रॉ कीता है इहदा आंसर मार्क कीता है, सारिਆਂ ਨੂੰ यह चीज क्लीयर है? सुखमन की लगेगी? ग्रैंड डॉटर। जे मैं पूछा हाउ इज आर रिलेटेड टू वरुण, आंसर की होएगा? सारे जल्दी जल्दी मार्क करो आपका आंसर।
हाउ इज आर रिलेटेड टू वरुण। क्विक आंसर की होएगा, आर की होएगा, ग्रैंड पेरेंट होएगा। ग्रैंड पेरेंट दे विच जेंडर मैनू क्लीयर है कि है मेल है। केड़ा ग्रैंड पेरेंट होएगा, ग्रैंड फादर। आर दा रिश्ता पूछे किहदे नाल, वरुण नाल, तां आर की होएगा, ग्रैंड फादर। ठीक, जे मैनू पूछे हाउ इज वरुण रिलेटेड टू आर, तां वरुण की होएगा, फीमेल है, तां वरुण दा रिलेशन की बनेगा, ग्रैंड चाइल्ड। केड़ा ग्रैंड चाइल्ड, ते वरुण है ग्रैंड डॉटर। जे मैनू पूछे ये क्वेश्चन जिहड़ा आपां ने हुण ड्रॉ करिया, इहदे च मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते, जरूरी नहीं है आ क्वेश्चन बन गया तो यही बन सकता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किन्ने रिलेशन आपने ड्रॉ किए, देखो जे पूछे हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, तो आंसर की होगा कजन्स। एस दा सन है एम ते आर दी डॉटर है एन, ये आपस च सिबलिंग्स ने, एस ते आर सिबलिंग्स ने, ते इन्हां दे थले जवाक ने, आपस च की होणगे, सिबलिंग्स। जे मैं पूछा हाउ इज एच रिलेटेड टू एन, तो आंसर की होएगा, एन दा सिबलिंग कौन है इत्थे, मेल, ओंदी मैरिड हुई हुई है एच नाल, तो एन दे की लगणगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक, ओके। होर भी रिलेशन है, बिल्कुल है, बहुत है। जे मैं सोनू पूछा इत्थे सिबलिंग्स किन्ने हैं, सैकेंड जनरेशन दे विच जे मैं सोनू पूछा कि इत्थे सिबलिंग्स किन्ने हैं, सारे आप दा आंसर मार्क करो कि इहदे विच सिबलिंग्स किन्ने बनदे, पहला तो सिबलिंग्स किन्ने हैं, क्रॉस चेक करो, क्यू एम एंड एन, क्यू एम ते एन आपस च की ने है, सिबलिंग्स। ठीक, होर सिबलिंग्स केड़े, फर्स्ट जनरेशन च केड़े सिबलिंग्स है, तरुण, सुखमन, वरुण। थर्ड जनरेशन च केड़े सिबलिंग्स है, सारे आंसर मार्क करी जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि सर सिबलिंग्स वर्ड कही जाते हैं ते दसी कजन बारे जाते हैं। क्यू एम ते एन सिबलिंग्स नहीं होंगे, ये की होंगे, कजन होंगे, कजन्स। क्यू एम एन की ने आपस च, कजन्स ने। थर्ड जनरेशन च केड़े कजन्स है, टी एस आर की ने, कजन्स ने। थले केड़े केड़े कजन्स है, तरुण, सुखमन ते वरुण, ये की ने, कजन्स ने। ठीक है, ओके, सारे नूं क्वेश्चन क्लियर है। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए की बन सकता अगला क्वेश्चन। ठीक है, हुण तक ਆਪਾਂ ਨੇ 6 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जिन्ना भी उनदे विच वास्ट मैं जा सकता सी, जिन्ना भी उन्होंने क्वेश्चन ਨੂੰ खोल के मैं दस सकता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ट्री ड्रॉ करिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिन्ने भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ तक करा चुके या एक अद्धा होर कराऊंगा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ ਉਹ रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड बिल्कुल लगभग ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨਗੇ। हो सकता है स्टेटमेंट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ क्वेश्चन ਔਖਾ ਹੋਣਾ नहीं है। सिर्फ एक दो लाइन ऐड करने नाल की होएगा, मैंबर्स ही बदलणगे, आपां उहनूं ट्री च इनकलूड कर दांगे। ठीक है, तो जिन्ना मैं तुहानूं इस विच करा रहा स्टेटमेंट बेस्ड, की सी स्टेटमेंट बेस्ड अपनी पहली टाइप सी, उहदे विच जिन्ने भी मैं क्वेश्चन करा रहा सारे इस लैक्चर चों बाद आपां ने किन्ने लैक्चरस ते क्वेश्चन कीते हैं, 1 2 3 लैक्चर च आपां ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनस दे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कीते हैं। ये तो बाद सारे ने एक बारी रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ओके, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जिहड़ा भी अपना बनता है ना, जिवें एक स्टेटमेंट देती उहदे चों आपां ने ट्री ड्रॉ कर लिया, अगे आपां जिन्ने भी टाइप अलग अलग करांगे, कोडेड या पॉइंट आउट, लगभग आपां ने मूव तो इत्थे ही करना है, आना आपां ने फिर भी ट्री ते ही है। ठीक है, तां करके इहदा बेसिक कंसैप्ट सारिआं नूं क्लीयर होना चाहिए कि किवें करें, फिर ही अगली टाइप करन दा फायदा, नहीं कोई फायदा नहीं, फिर तुसीं उत्थे उलझी जाओगे कि इत्थे की है। सारे दे सारे क्वेश्चन ये तो पहला जिन्ने कराए सी ते अज मैं जिन्ने करा रहा, क्रॉस चेक करने, जाके रिवाइज करना, उन्होंने देखना है कि मैं दोबारा मेरे जदों भी वीडियो चलाऊंगे तो सोल्यूशन नहीं देखना, एक बारी जो रिवीजन वास्ते वीडियो चलाओगे सोल्यूशन नहीं चेक करना, क्वेश्चन देखने साथ वीडियो को पॉज करना है तो आप ट्री ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, फिर प्ले करके देखना, अच्छा जेड़ा सर ने बनाया कि भी मेरा भी वही बन रहा है। ठीक है, जे बन रहा था वेरी गुड, छोटे कंसेप्ट क्लियर ने। ठीक है, ठीक है, अज दा लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं की है, की कह रहा है, इन अ फैमिली देयर आर 7 मैंबर्स, एक फैमिली दे विच कितने मैंबर ने, 7 मैंबर्स ने, 7 मैंबर्स ने, कॉम्प्रोमाइजिंग टू। ठीक है, क्वेश्चन इत्थे तक रीड करो, इन अ फैमिली देयर आर 7 मैंबर्स,
ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿੰਨੇ 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਐਮ ਦਾ ਐਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਕੇ मतलब टी सन भी है एम दा ते ग्रैंडसन भी है किदा के दा। ठीक है, एम इज अ विडोअर। विडोअर दा मतलब की हुंदा ओदे नाल वाला पार्टनर नहीं हैगा। ठीक है, जदों भी पार्टनर विडोअर वर्ड यूज किया जाता है तो मतलब वो सिंगल है, ओदे नाल वाला पार्टनर नहीं है। एम एंड आर आर ब्रदर्स। एम ते आर की ने आपस च ब्रदर्स ने। ठीक है, एंड डब्ल्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। डब्ल्यू जो भी होएगी वो की होएगी डॉटर इन लॉ होएगी की दी जे दी। ठीक है, हु इज दी मदर ऑफ आर। हु वर्ड की लिए यूज किया गया है जेड़ा लास्ट वेरिएबल सी हु जे। हु इज दी मदर ऑफ आर। जे जो भी है वो की है मदर है की दी आर दी। एंड दी ग्रैंडसन ऑफ के। ठीक है, क्लियर है। जे की है मदर है की दी आर दी ते ग्रैंड मदर है डी दी। इत्थे तक आपां नूं स्टेटमेंट दी गई है, इहदे बेस ते आपां ने ट्री ड्रॉ करना है। ठीक है, करते हैं सारे। ओके, कहना इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर कंप्रोमाइजिंग 2 मैरिड कपल। टी की है सन है किदा। टी जो भी पर्सन होएगा वो की होएगा सन होएगा किंदा एम दा। ओके, क्लियर है ये भी गल आपां नूं। एंड ग्रैंडसन ऑफ के। टी सन है एम दा ते ग्रैंडसन है किदा के दा। के नूं स्टार्टिंग च किसी ने भी एम दे नाल रिलेट नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग च किसी ने भी के नू एम नाल रिलेट नहीं करना। क्यों नहीं करना, हो सकता है एम मैरिड होवे है ना, ते के अगे उहदे नाल जिहड़ा पार्टनर है उहदा पेरेंट हो सकता है, फिर भी तो किते ना किते ओह ग्रैंडसन ही बनूगा टी है ना। ठीक है, लिख के रख लेना की है ग्रैंडसन है टी किदा के दा। ओके, एम की है विडोअर। विडोअर दा मतलब की है विडोअर दा मतलब है कि ओदे नाल कोई कपल नहीं हैगा, ओदा पार्टनर नहीं हैगा। ठीक है, कपल वाली कंडीशन च कदे भी विडोअर नहीं आंदा। कपल दा मतलब जे उन्हें कहा क्वेश्चन दे विच कि कंप्रोमाइजिंग 2 मैरिड कपल मतलब उस केस च 2 मैरिड कपल अपने चार्ट च दिखने चाहिए एक्सेप्ट जेड़ा विडोअर आपां नूं कहा गया उन्होंने हटा के 2 मैरिड कपल होंगे। ठीक, अगली लाइन की कह रहे हैं एम एंड आर आर ब्रदर्स। ठीक है, मैट कर लेना है। एम ते आर की ने आपस च ब्रदर्स ने, जेंडर मैं नाल दी नाल ला लिया। ठीक है, ओके, अगली लाइन की कह रही है डब्ल्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे। डब्ल्यू जो भी होएगी वो डॉटर इन लॉ होएगी की दी जे दी। डॉटर इन लॉ होने का मतलब की होंदा है नूं होना। ठीक है, मतलब उन्हां दा ओदा कोई मेल अपना सन है ते उहदे नाल डब्ल्यू मैरिड है तां ओह की होगी ओदी डॉटर इन लॉ होगी की दी जे दी। क्लियर। ठीक है, हजे ये इंफॉर्मेशन अगे मैं पढ़ूंगा, जे इहदा कोई लिंक मिला मैं इस ट्री च उहनूं ऐड कर दूंगा, नहीं तो मैं अगे मूव करूंगा। ठीक है, जे हु इज दी मदर ऑफ आर। ओके, उन्हें अगे मैनू कहता जे की है मदर है की दी आर दी। ओके, मदर होने का मतलब जनरेशन चेंज वो उत्ते बैठ गए। ते जे की है डब्ल्यू होंदी की है डॉटर इन लॉ। इस केस दे विच कोई भी भुल के डब्ल्यू नूं इत्थे नहीं ला दूगा क्योंकि एम उन्हें पहले ही दस्सिया विडोअर है, मतलब उहदे नाल कोई पार्टनर नहीं हैगा। तां इक्को ही कंडीशन बचदी है कि जिहड़ी भी डब्ल्यू जे दी डॉटर इन लॉ होई बनेगी वो किहदे नाल बैठेगी आर नाल। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इत्थे लिंक होगी, हुण मैनूं इहदी लोड़ नहीं देखण दी दोबारा। ठीक है, जे हु इज दी मदर ऑफ आर एंड दी ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, ओके, ग्रैंड मदर है। ठीक है, मतलब थले एक ग्रैंड चाइल्ड बैठा होगा। ओके, इत्थे तक स्टेटमेंट है। ठीक है, हुण 2 मैरिड कपल इहदे च होने चाहिए सी, पर कायदे दे हिसाब नाल आपां ने हजे 1 ही बनाया। मैं उत्ते देखिया टी की सीगा ग्रैंडसन सी किदा केदा। ठीक है, हुण मैं दूसरा मैरिड कपल भी इहदे च इंक्लूड करना है, तो ओहदी पॉसिबिलिटी की बनेगी। पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनेगी
कि के नू मैं इहदा पेरेंट बनावां ते इहनू आपस च लिंक करा। हुण इस क्वेश्चन च देखो दो मैरिड कपल हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए, एक सी मैरिड कपल एक सी मैरिड कपल, ठीक है। जदों उन्हें क्या कि जे हु इज द मदर ऑफ आर एंड ग्रैंड मदर ऑफ डी, मतलब जे ग्रैंड मदर है, तो इस केस च देखो ये कदे भी जरूरी नहीं हैगा कि डी आर दा चाइल्ड होएगा, ठीक है। ये कदे भी जरूरी नहीं हैगा कि डी आर दा ही चाइल्ड होएगा। जे मैं डी नू इत्थे लिखदा, जे मैं डी नू एम दे थले लिखदा, ठीक है, जे मैं डी नू एम दे थले लिखदा तां भी तां ग्रैंड चाइल्ड अपना ग्रैंड मदर बन रही है जे, ठीक है। जे मैं डी नू ओदी आही लोकेशन च बिठा दा इन्हां दोवां दे थले तां भी जे ग्रैंड मदर बन रही है। इस केस दे विच आपां नू ये क्लीयर नहीं हो रहा, ये क्लीयर नहीं हो रहा कि डी की दा सन है या डी की दा चाइल्ड है, वो आर दा चाइल्ड है, आर ते डब्ल्यू दा चाइल्ड है या एम दा चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं इनू परफेक्टली किते प्लेस नहीं कर सकता। क्लीयर है सारे नू, ठीक है। क्वेश्चन देखिए उन्हें की पूछा, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। उन्हें क्वेश्चन भी यही पूछ लिया कि डी दा रिलेशन की है की दे नाल, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। पहली गल तो मैं इस चीज का आंसर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इहदा दो केसिस ने इहदे च, ना तो मैनू डी का जेंडर क्लीयर है, ना मैनू आए क्लीयर है कि डी किधरले पासे केड़े जवाक अपना के एम या आर यह किहदा चाइल्ड हो सकता, आर दा हो सकता, एम दा हो सकता। बस उन्हें इन्नी की इन्फॉर्मेशन दी कि जे ग्रैंड मदर है डी दी, ठीक है। तो मेरे को डी दी कोई परफेक्ट पोजीशन नहीं बनी जिथे मैं उन्होंने बिठा सका, तो इस केस च आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर जो आप नहीं कर सकते तो उस दे विच की मार्क करना चाहिए, कांट बी डिटरमाइन कि मतलब की है आप नहीं पता कर सकते, या फिर डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है। सारे नू क्लीयर है ये चीज, ओके। अज आपने इस क्लास दे विच 8 क्वेश्चन डिस्कस किए ने। नैक्सट क्लास दे विच मैं ब्लड रिलेशन दे 1 या 2 क्वेश्चन होर लैके आऊँगा जेडे हो सकता है ये तो ज़्यादा टिपिकल हो, ते उस केस दे विच जिवें इहदे च पॉसिबिलिटी बनी सी कि 2 मैरिड कपल नूं किट्ठे बिठावां, एज दी बैटर अंडरस्टैंडिंग सुनो उत्थे हो सके, तो मैं थोनों एक अद्धा क्वेश्चन होर लैके आऊँगा, तो उस तो बाद आपां की करांगे कोडेड ब्लड रिलेशन च मूव करांगे, ठीक है। अज आपां ने 8 क्वेश्चन डिस्कस करे। किसी नूं भी इस 8 क्वेश्चन दे विच कोई डाउट होवे इनू वीडियो नूं बैक करके दोबारा देखना, ठीक है। पर जिन्ने भी कंसैप्ट आपने हुण यूज करे सोनू सारे आपदे टिप्स ते होने चाहिए ने, क्योंकि कोडेड ब्लड रिलेशन जो आप करांगे तो ये सारे कंसैप्ट उहदे नाल लिंक होंगे, ठीक है। ओके, अपनी क्लास नूं 8 क्वेश्चन अज हो गए, मैनूं लगदा 8-9 क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास दे विच डिस्कस कीते सी, सारिआं ने ये रिवाइज करना है ते नैक्सट क्लास च आप अगे बढ़ांगे, ठीक है। जिन्ने भी बच्चे अज क्लास च आए, ठीक है, सारिआं ने रिवाइज करना है, एम सारिआं वास्ते, ओके, ठीक है। सैशन नूं अज दा एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्ने भी स्टूडेंट इत्थे ने, थैंक्स। ते अपनी क्लास नूं रिवाइज करो, बेसिक कंसैप्ट क्लीयर करो ते सारे ट्री नूं रिवाइज करो, ओके ओके। थैंक यू सो मच, बाय।